Hello children, today we will do activity 5 of unit 6. So take out the page number 50. You can see here what is this? This is shadow art. We all do this, है ना? Eagle, we make eagle, dog and many more things by shadow art. So have you heard of shadowgraphy? It's art of using the hands to make interesting shadow shape on a screen. We all make these things na. This is called shadowgraphy. The art has been around a long time. European travelers means who traveled here and there in other countries. So Europe is a country and they travel and learned it when visiting China. But at that time, people used puppets. When Europeans visited China, they came to know shadowgraphy. जब यूरोपियंस चाइना आए तो उनको शेडोग्राफी के बारे में पता चला. So China is the origin country of shadowgraphy or this art, shadow art. Later, some people started doing shadow with hand shadow. वो टाइम पर पपेट से का यूज़ करते थे बट बाद में someone started with hands का यूज़ करके. A boy named Felician Treve left home at 15 years old to become a performer and a magician. परफॉर्मर क्या होता है? जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं. और ये बॉय ने अपने क्या कर दिया? घर छोड़ा. उसको ये बनना था परफॉर्मर एंड अ मैजिशियन. ही बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर हिज हैंड शेडोज. और वो अपने हैंड शेडोज के लिए बहुत पॉपुलर हो गया. ही लाइक टू मेक हिज हैंड्स लुक लाइक द शेडो ऑफ फेमस पीपल. So when he practiced all these things, he would be so perfect. वो इतना perfect हो गया था कि वो famous people का shadow भी बनाने लगा था. There is a scientific evidence that doing hand shadows activates a part of the brain called Broca's area. We all have a part in brain that help in learning language. That's name is Broca area. This part of the brain help with language. So doing hand shadow may help you speak English. So when you practice all these shadow art, you can learn language easily. आपको English और other language सीखने में आसानी हो जाएगी. If you had like to try making some hand shadows, start with a nice bright light in a dark room and shine the light so that your shadow shows on a blank wall. ये तो आप सबको पता है. शेडो के लिए हमको क्या चाहिए? लाइट चाहिए और एक वॉल चाहिए है जिस पर शेडो बनेगी, है ना. One of the easiest hand shadow to start with a bird. You can easily make the bird fly by moving your fingers. Try it and see. So, most easy shadow is this eagle bird. We all can do this. हम सब ये कर सकते हैं ना. तो हमको इसे स्टार्ट करना है. And then you can also make this type of shadowgraphy. आप ऐसे शेडोज़ भी अपने हैंड से बना सकते हो. सो एक्टिविटी 6 आपको आपके घर में प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ भी कर सकते हो, है ना. सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. अंडरस्टैंड. सो नाउ वी विल डू एक्टिविटी 7. टेक आउट पेज नंबर 52. A beautiful story, a moth with a dream.
आप जानते हैं ना मोथ कैसा होता है, लुक्स लाइक अ बिग बटरफ्लाई, एंड इसको हम सिंपल लैंग्वेज में पतंगा ऐसा बोलते हैं ना। लाइट के आसपास देखते हो ना आप रात में, स्ट्रीट लाइट के पास बटरफ्लाई लाइक जो इंसेक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड मोथ। सो अ मोथ्स ड्रीम, उसका क्या ड्रीम था वो आपको इस स्टोरी में हम बताएंगे। दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द मोथ एंड द स्टार बाय जेम्स थर्बर। ओके, let's start the story. Once upon a time, a young moth fell in love with a beautiful star. He told his mother one day he would reach the star, but she told him he should dream of something closer, something easier like a nice lamp. अब जो यंग मोथ था उसको कौन अच्छे लगने लगा था, किससे प्यार हो गया था? ब्यूटीफुल स्टार्स से। अब स्टार्स तो आपको पता है कहाँ होते हैं, इन द स्काई, दे आर वेरी फार, है ना, वो हमारे आसपास तो है नहीं। उसको क्या करना था? बट स्टार ने मोथ ने अपनी मदर से क्या बोला कि मुझे उसके पास पहुंचना है, स्टार के पास। बट मदर नोज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो शी टोल्ड कि तुम ड्रीम देखो, सपना देखो, बट किसी क्लोजर चीज़ का, जैसे कि एक नाइस लैम्प। एज आई टोल्ड यू, द मोथ्स आर रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट लाइट। मोथ्स जो होते हैं वो स्ट्रीट लाइट या लैम्प के आसपास घूमते हैं। सो हिज मदर टोल्ड दैट stars are not the kind of thing you should be working for, she said. Lamps are the thing. Find a nice lamp. Moth's father said, yes, you can easily reach a lamp. You will never be able to reach a star. उसके फादर ने भी बोला कि लैम्प के पास तुम आसानी से पहुंच जाओगे, लेकिन स्टार के पास तो नहीं जा सकते हो। But the moth did not listen to his mother and father. उसने किसी का कहना नहीं सुना। Every evening, when the star came out, he would start flying towards it. Every morning, he came back home, worn out from flying all night. तो स्टार्स कब अपीयर होते हैं स्काई में? नाइट को, है ना। तो वो रात में रोज़ वहाँ पर जाता था, ट्राई करता था कि स्टार तक पहुँच जाए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तो जैसी मॉर्निंग होती थी तो वो वापस आता था वर्न आउट, मतलब वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड होकर, थक कर, क्योंकि पूरी रात वो फ्लाई करता था। वन डे हिज फादर सेड टू हिम, यू हैव नॉट बर्न्ड अ विंग येट बॉय, एंड इट लुक्स टू मी लाइक यू नेवर विल। और उसके फादर ने क्या बोला कि तुमने अभी तक अपने जो पंख है उनको बर्न नहीं किए। आपने देखा होगा ना कि मोथ्स जो होते लाइट के पास ऐसे बैठते तो ऐसे ऐसे फ्लटर करते अपने विंग्स, वो क्या कहलाता है? विंग्स को बर्न करना। तो उसके फादर ने कहा, और मुझे नहीं लगता तुम कभी ऐसा कर पाओगे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? All your brothers have burned their wings flying around street lamp. All your sisters have burned their wings flying around house lamps. Come on now. This is what we do. As I told you, all moths are flutter their wings. जैसा वो हमेशा करते हैं। तो उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? You are not afraid of a little burn? Are you? क्या तुमको जलने से डर लगता है? The moth was not afraid, but he didn't want to fly around street lamp or house lamp. उसको डर तो नहीं लगता था, बट वो ऐसे आसपास के स्ट्रीट लैम्प, हाउस लैम्प के पास फ्लाई नहीं करना चाहता था। So he left his father's house. He never changed his dream when he grew up. He continued to believe.
तो उसने इस अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए हाउस भी लेफ्ट कर दिया, घर भी छोड़ दिया, और अब वो क्या हो गया था, थोड़ा बड़ा भी हो गया था। Every night he went right on trying to reach the star. Of course, this star was 4 1/3 light years और 40 ट्रिलियंस किलोमीटर। ये कितना था? 40 ट्रिलियंस किलोमीटर दूर था। बट मोथ डिड नॉट नो दैट। बट मोथ को तो ये पता ही नहीं था, उसको तो वो पास में लगता था। The moth thought the star was just caught in the top branches of a tall tree. उसको क्या लगता था कि ये तो बस पास में ही पेड़ के सबसे ऊपर की ब्रांच के पीछे छिपा है। The moth went right on trying night after night, but he never did reach the star. Finally, when he was very old, the moth began to play tricks. उसने बहुत रात दिन ट्राई किया बट he was not succeed. तो अब वो क्या करने लगा जब बहुत ओल्ड हो गया? ट्रिक्स मतलब अपने मन को कैसे समझाने लगा, as mind sometimes do. जब हम कोई चीज़ नहीं मिल पाती तो हम तसल्ली देने के लिए कुछ अपने परसेप्शंस बना लेते हैं। He also did that. He began to believe that he really had reached the star. और उसने बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो स्टार के पास पहुंच गया। Often he told stories of his adventure watching a star. और अक्सर वो अपनी often मतलब अक्सर अपनी क्या सुनाने लगा स्टोरीज कि कैसे उसने एडवेंचर मतलब इतना जोखिम डालकर स्टार को पकड़ा। No one listened, but he was happy anyways. कोई नहीं सुनता था बट वो खुश था इसी में। For his entire long life, the moth believed in his dream, and he lived to be a very old moth. और उसने अपने क्योंकि विंग्स बर्न नहीं किए थे तो बहुत टाइम तक वो जिंदा रहा है ना, अपने बिलीव और अपने सपने के साथ। He was happy, but his mother, father, brothers and sisters all burned to death when they were quite young. वो इतने टाइम तक जिंदा भी रहा और हैप्पी भी रहा है ना, खुश भी रहा, लेकिन उसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब क्या हो गए थे, मर गए थे। क्यों? बहुत यंग थे तभी मर गए थे। कैसे? बिकॉज दे बर्न देयर विंग्स। उन्होंने अपने विंग्स स्ट्रीट लैम्प और हाउस लैम्प के आगे पीछे जला दिए थे, तो वो जल्दी मर गए। सो अंडरस्टैंड द स्टोरी। आपको समझ में आई ना स्टोरी? ये क्या थी? मोथ और उसका ड्रीम। सो यू नो दैट कि अगर हम कोई ड्रीम देखते हैं, हमारे पास कोई ड्रीम होता है, तो हम वी कैन लिव लॉन्ग एंड वी विल हैप्पी। हम खुश रहते हैं। अगर वो हमारा वो ड्रीम पूरा करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं और पूरा भी नहीं हो पाए, अगर हमने यहाँ पर तो मोथ ने कैसा ड्रीम रखा था, अनएक्सपेक्टेड, उसका ड्रीम पूरा होने ही नहीं वाला था। बट हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, वो है ना, प्रैक्टिकल होते हैं कि वो हम उनको हार्ड वर्क के थ्रू पूरा कर सकते हैं। बट स्टिल मोथ का ड्रीम अनएक्सपेक्टेड था, इम्पॉसिबल था, फिर भी वो पूरा नहीं हो पाया। बट मोथ वॉज हैप्पी एंड लिव लॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो उसने ट्राई किया। सो वी नेवर गिव अप एट एनी कॉस्ट। हमको कभी गिव अप नहीं करना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। ओके, रीड द स्टोरी 2 and 3 times. ओके, थैंक यू।